अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम जी मैम आ रही है। वालेकुम सलाम मैम। जी मैम आ रही है। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं और उसके बाद हम अटेंडेंस लेंगे। और कोई भी इशू होगा at the end of the lecture you can ask. Okay ji, so today's lecture is about endoscopy. So let's talk about its history first. Initially, endoscopy consisted of rigid metal sigmoidoscopes and esophagoscopes and so-called semi-flexible gastroscopes according to the area. Sigmoidoscopes जो colon sigmoid तक जा सकते हैं, esophagoscopes for esophagus and gastros for the stomach. So they were made up of metal and they were not fully flexible. Metal के थे so called semi flexible and semi flexible भी इसलिए because they had the flexible tip providing limited views और इसमें tissue sampling biopsies नहीं ली जा सकती थी. And also because these endoscopes were made up of metal and they were rigid, so they provided large discomfort to the patients. Better gastric visualization was achieved with intragastric cameras. इसके साथ जब attach किए गए devised by Japanese because of their focus on gastric cancers. So cameras के through जो है उसमें the doctor could see the anatomy and the inside of the organs. The introduction of fiber optic bundles by British scientists used for of electric signal or image transmission led quickly to the development of truly flexible gastroscopes. In the mid 1960s, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इसका वही जो है वो फंक्शन होगा कि उस कैमरा के साथ वहां से इमेज फाइबर ऑप्टिक्स लेके जाएगा with the attached monitor. So the doctors could see the image over the computer or the monitor. Another important technical breakthrough occurred in the 1980s with the introduction of video chip technology. जिसमें there is high resolution image without the need of connecting the scope to both the light source and video camera, and the image could be saved. Fiber optics में connection जरूरी होता है with the light source and then to the cameras, but video chips simply store it and then that could be seen. Secondly, it was of high resolution, but still fiber optics ही ज़्यादा use होते हैं in our setup. Purpose of endoscopy, it is a non-surgical procedure and it allows a physician to examine a person's digestive tract and includes the study of esophagus, stomach and duodenum using an endoscope, a flexible tube with a light and camera. Attached to it is inserted in the patient digestive tract and the physician can view the pictures of digestive tract on a color TV monitor. EGD, esophagogastroduodenoscopy, esophago for esophagus, gastro for stomach and duodenum के लिए है जी duodenum. So it is a procedure during which a small flexible endoscope is introduced through the mouth और अगर smaller caliber endoscope हो तो through the nose भी enter हो सकता है, advancing through the pharynx, esophagus, stomach and duodenum तक जाएगा. इसको हम upper GI endoscope भी कह रहे होते हैं because ये duodenum से आगे नहीं जाता. लेकिन जो enteroscope होता है, it is a longer endoscope that can be introduced beyond the ligament of treats into the jejunum. EGD is used for both diagnostic procedures and therapeutic procedure. Most modern endoscopes now use a video chip for better imaging as opposed to older endoscope in which fiber optics are used for
image transmission. So this is an endoscope. तो यहाँ से कंट्रोल होती है. यहाँ पे इन्होंने नोज के थ्रू दिखाई हुई है कि it is passing through the nose and pharynx and then into the esophagus, stomach and up to the duodenum. और इसके एंड पे ये लाइट सोर्स और कैमरा अटैच्ड होता है. And this is how the physician can see it on the monitor TV. This is the esophageal sphincter, it is normal. और ये duodenum show की हुई है at the area of ampulla. ठीक है जी, इस तरह अच्छा इस तरह की होती है जी एंडोस्कोप. ये यहाँ से कंट्रोल होती है. तो ये लाइट सोर्स के साथ एंड विद द कैमरा होती है और ये सारी जीआईटी के ट्रैक के थ्रू पास होती है. ये माउथ के थ्रू एंटर हुई है into the esophagus, stomach and duodenum. Okay. What is colonoscopy? It can be passed into the large intestine colon through the rectum to examine the area of intestine. Endoscope या upper GI endoscope जो through the mouth or nose up to duodenum. और अगर enteroscope है थोड़ा उसकी लेंथ ज़्यादा है तो it can be up to jejunum. और colonoscopy के अंदर colonoscope होता है जो via rectum into the colon large intestine. This is called as sigmoidoscopy or colonoscopy depending upon how far up the colon is being examined. A special form of endoscopy called endoscopic retrograde cholangiopancreaticography (ERCP). Cholangio for the gallbladder and pancreaticography will be for the pancreas. So basically इस endoscopy के through you can look into pancreas and gallbladder and related structure, bile duct वगैरह. ERCP is also used for stent placement. अगर bile duct for example obstruction हो जाए या gallstone हो जाए उनके removal के लिए stent placement के लिए और even biopsies के लिए ERCP किया जाता है. It is a very common procedure. Endoscopic ultrasound. It combines the upper endoscopy, upper GI endoscopy up to the duodenum and ultrasound examination to obtain images and information about various parts of the digestive tract. Preparations for endoscopy. ठीक है जी, इसमें पहले है gut preparation. Examining the upper GI tract अगर है upper endoscopy या ERCP कर रहे हैं पेशेंट का तो उसमें फास्टिंग ज़रूरी होती है फॉर 6 to 8 आवर्स क्योंकि आपने ट्रैक देखना है और अगर उसमें सारा फूड होगा तो उसकी कोई पैथोलॉजी कोई एनाटमी कुछ पता ही नहीं चलेगी. So fasting for 6 to 8 hours prior to the procedure. And if colon is to be examined, then it must be cleared of the stool. So therefore, a laxative is given or a group of laxatives can be given on the day before the procedure. Sedation. Sedation देते हैं जी पेन को कंट्रोल करने के. ऑब्वियसली एक एंडोस्कोप नाउ इट इज फ्लेक्सिबल बट फिर भी ये डिस्कम्फर्ट करेगा, पेन करेगा. एक फॉर्म चीज जब अंदर जाएगी पेशेंट के डाइजेस्टिव ट्रैक में. सो सेडेटिव उसको दिए जाते हैं to increase the comfort of the individual undergoing the examination. The sedative is injected or administered via an injection into the vein, producing the relaxation and light sleep पे चला जाएगा. Patient wake up within an hour, but the effects of the medicine are more prolonged, so it is not safe to drive until the next day. The patient को हम advise करते हैं कि endoscopy के 1 day तक no driving and rest. General anesthesia is not a common practice for endoscopy, but depending upon क्योंकि इसमें patient obviously totally anesthetized है, totally asleep for a period of time. It is given in young patient अगर pediatric age के बच्चों में endoscopy करना is not easy, or if there is any complex procedure to be done.
What are the indications for doing endoscopy or esophagogastroduodenoscopy? It includes the diagnostic evaluation for signs or symptoms suggestive of upper GI disease. For example, dyspepsia है, indigestion है, पेन है upper abdomen में, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो रही. नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है, सारी कार्डियक इवैल्यूएशन नॉर्मल है, बट पेशेंट को चेस्ट पेन है. यूजुअली गर्ड के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस में होता है. और अगर वो डायग्नोज नहीं हो रहा, सो डायग्नोसिस के लिए हम यूज करेंगे सर्वेलेंस ऑफ अपर जीआई कैंसर इन हाई रिस्क सेटिंग्स, biopsy for a known or suggested upper GI disease like in syndromes, neoplasm है, cancerous conditions हैं, और infection के लिए biopsy लेंगे. To evaluate the reason of stomach pain, sometimes stomach pain undiagnosed होती है, सारे टेस्ट पे कुछ नहीं होता, so then you go for endoscopy in the end to evaluate the ulcers, gastritis or difficulty in swallowing, digestive tract bleeding हो रही है, तब एंडोस्कोपी के थ्रू उस ब्लीडिंग को भी रोका जा सकता है, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए थेराप्यूटिक यूज भी है. चेंजेस इन बाउल हैबिट्स, क्रॉनिक या कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया है, उसके लिए हम करेंगे पॉलिप्स और ग्रोथ इन द कॉलन, इवन रिमूवल ऑफ द पॉलिप्स के लिए भी की जाती है. एंड इन एंडोस्कोप polyps are outgrowths in the mucosa. So in addition, an endoscope may be used to take a biopsy. Biopsy में बिल्कुल minor सा tissue remove कर लिया जाता है to look for the presence of disease. External therapeutics. Digestive tract problem की treatment के लिए use करेंगे. As in अगर active bleeding हो रही है from the ulcer तो उसको stop करने के लिए, because the devices can be passed through the endoscope that can stop the bleeding. For example, कोई artery है, कोई जो bleed कर रही है, so instrument can be passed through the endoscope and that can be ligated. In the colon, polyps can be removed through the scope to prevent the development of colon cancer, because polyps are at the risk of developing the cancer. Also using ERCP gallstones that have passed outside the gallbladder and into the bile duct, उनको भी ERCP के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है. Okay. Lastly, what are contraindications कब आपने नहीं करनी when there is possible perforation, like अगर perforated peptic ulcer की जो है वो खतरा है physician को on the basis of the signs, symptoms and labs, तब हम इसमें एंडोस्कोपी नहीं करेंगे, क्योंकि सेडेटिव्स एंड जनरल एनेस्थीसिया एक टाइम पे तो कभी भी नहीं देंगे. यूजुअली जो है सेडेटिव देते हैं जिससे लाइट स्लीप में होती है और पेन जो है पेशेंट को कम फील होगी. जनरल एनेस्थीसिया इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू डू, ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस. अगर पेडियाट्रिक एज का हो पेशेंट, ठीक है, यंग चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर एंडोस्कोपी करना इज नॉट पॉसिबल विद द सेडेटिव लाइट स्लीप में भी. और दूसरा, अगर कोई और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करना है जिसमें आपको ये खदशा होता है कि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकेगा, वरना अदरवाइज सेडेटिव्स देते हैं, पेन होती है, पेशेंट टॉलरेट कर जाता है. सो दे आर नॉट गिवन टुगेदर. लोकल एनेस्थीसिया इसमें हम लोकल नहीं दे रहे होते, क्योंकि लोकल वो होता है जो किसी एक साइट के लिए होता है, ठीक है. जिस वो फॉर एग्जांपल स्किन का कोई एरिया है, आप उसी अगर हैंड के अराउंड किसी एरिया में आप लोकल इंजेक्शंस लगा दें, वो सब डर्मल इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो वेन के अंदर भी नहीं होते. तो उसमें सिर्फ वही एरिया जो है वो आपका एनेस्थेटाइज होता है. जैसे आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको लोकल एनेस्थीसिया देता है, ठीक है जी, और दांत वहां से सुन्न हो जाता है. सो दैट इज अ लोकल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया जो है वो आईवी के थ्रू ही जाता है,
ठीक है, और उसमें पेशेंट बिल्कुल एस्लीप है और पेशेंट की सारी मॉनिटरिंग जो है वो आपकी इस पे हो रही होती है ओवर द मशीन, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न सब कुछ अंडर मॉनिटरिंग होता है। सो वो आपका डायरेक्ट ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा होता है इन द जनरल एनेस्थीसिया। सो दीज आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स, और इसमें हम सिर्फ लाइट सेडेटिव्स इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ओके जी। सो जी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसके लिए पॉसिबल परफोरेशन। अगर परफोरेशन का आपको ऑलरेडी चांस लग रहा है क्योंकि एंडोस्कोपी इटसेल्फ कैन कॉज दी परफोरेशन। फॉर एग्जांपल जब इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, नैरोइंग हो जाती है इसोफेगस की, उसको डायलेट करने के लिए एंडोस्कोप यूज किया जाता है। दैट इज टेम्पररी ट्रीटमेंट। लेकिन उसमें भी रिस्क होता है कि परफोरेशन हो सकती है। सो अगर आपको ऑलरेडी फिजिशियन को डाउट है कि इसको परफोरेशन हो जाएगी तो उसके अंदर एंडोस्कोपी नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर परफोरेशन का अगर उसको डाउट है। मेडिकली अनस्टेबल पेशेंट है, पेशेंट कोमा में है, अनकॉन्शियस है, या फिर पेशेंट को रिसेंटली कोई भी प्रॉब्लम हुई लाइक एंजाइना या एमआई हुआ था रिसेंटली, तो ऐसे पेशेंट्स में नहीं करेंगे। अनविलिंग पेशेंट्स में ऑब्वियसली नहीं करते। एंटीकोगुलेंट्स पे है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, सो उस पेशेंट में नहीं करेंगे। और इफ द पेशेंट इज अंडरगोस गॉन एनी हेड एंड नेक सर्जरी, अगेन उसमें चांसेस होते हैं शॉक के या फिर ब्लीडिंग के। दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, आप लोग ना ये लेक्चर साथ साथ प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आई विल ट्राई कि नवंबर के का जो एंड वाला वीक है उसमें कोई एक क्विज रख लिया जाए एमसीक्यूज का। अभी मेरे एलएमएस का थोड़ा इशू है, वो प्रॉबेबली आई विल ट्राई कि इसी वीक में वो हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वीक रखूंगी। तो आप अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके रखें। मैम क्विज ऑन कैंपस होगा या फिर ऑनलाइन ही होगा? नहीं, ऑनलाइन ही होगा, ऑन कैंपस नहीं होना क्विज। मैम आपने हमें इनरोल कर दिया एलएमएस पे? नहीं किया ना, अभी मेरा एलएमएस अभी कोर्स नहीं अपलोड हुआ हुआ उस पे। इस वीक में हो जाएगा। और अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं, आज 6 लेक्चर था तो 7 लेक्चर्स तक तो आप लोग प्रिपेयर कर लें। ठीक है जी, अब अटेंडेंस लगाते हैं। अगर किसी की अटेंडेंस रह जाए तो वो एंड पे मुझे बता दे, और किसी का कोई इशू हो जाता है नेट का या कुछ भी ड्यूरिंग अटेंडेंस तो वो मुझे बाद में मेल कर दिया करें। सहरिश अथर, सहरिश अथर एब्सेंट। अक्सर रशीद, अक्सा रशीद एब्सेंट। सुमैया सज्जाद, सुमैया सज्जाद एब्सेंट। सलमान राशिद, प्रेजेंट। आकिफा जावेद, ये भी कभी नहीं होती। आरफा कबीर, आकिफा प्रेजेंट है आज। आरफा कबीर एब्सेंट। इरम ताहिर,
इरम ताहिर एब्सेंट, सैयदा बतूल बुखारी एब्सेंट, एमन रजा अरफा is present. Okay. इरम ताहिर भी प्रेजेंट है। एमन रजा प्रेजेंट। आबरू फातिमा प्रेजेंट। सबाहत ज़िया एब्सेंट। नसरुल्लाह एब्सेंट। आयशा अयूब अलीना एब्सेंट। नसरुल्लाह प्रेजेंट है। मोहम्मद काशिफ 1257 जी नहीं, स्क्रीनशॉट का आइडिया देने का बहुत शुक्रिया। इकरा नजीर एब्सेंट। फातिमा अब्दुल्ला प्रेजेंट। अहमद मुज्तबा मुझे रैंडमली अपने मत भेजे, जिसका नाम ले रही हूँ वही मुझे रिप्लाई करेगा। अहमद मुज्तबा एब्सेंट। अल्लाह नवाज प्रेजेंट। अलीना प्रेजेंट है। ठीक है। सादका शहजादी प्रेजेंट। दुआ खान प्रेजेंट। खतीजा नवाज एब्सेंट। हाफिज मोहम्मद सलमान प्रेजेंट। रगीजा अनम प्रेजेंट। मोहम्मद अरसलान प्रेजेंट। मोहम्मद अमान खतीजा नवाज प्रेजेंट है। मोहम्मद अमान एब्सेंट। आयशा नासिर एब्सेंट। एमन हबीब प्रेजेंट। मोहम्मद हामिद प्रेजेंट। मोहम्मद आमिर ताहिर प्रेजेंट। रबिया इरफान प्रेजेंट। सुमैया सादिया एब्सेंट। उमैर अहमद प्रेजेंट। इकराम शरीफ प्रेजेंट। मोहम्मद शहीर प्रेजेंट। लिंता याकूब प्रेजेंट। समिया शाहिद एब्सेंट। सबा यासीन प्रेजेंट। गानिया खान प्रेजेंट। दाऊद प्रेजेंट। सुंबल मुश्ताक एब्सेंट। मोहम्मद राफे प्रेजेंट। सिमाब फयाज प्रेजेंट। सहर नदीम प्रेजेंट। ज़ैनब अंसर
Zainab Ansar absent. Kashif Maqsood present. Waleed Malik present. Taimur Mujahid present. Nudrat Noor present. Muhammad Kashif 44061 present. Ummi Ayman absent. Muhammad Abdullah absent. Maheen Zafar सुमैया सादिया ठीक है सुमैया आपकी लग गई है एमन दिलशाद प्रेजेंट फरा नूर प्रेजेंट रहमा सुहेल प्रेजेंट नादिर हुसैन फाखरा जफर प्रेजेंट माहीन प्रेजेंट सारा अनवर प्रेजेंट अफजल एहसन प्रेजेंट मेमूना तारिक प्रेजेंट आयशा प्रेजेंट आलिया शहबाज प्रेजेंट रीबा नासिर एब्सेंट मोमिना अब्दुल कदूस प्रेजेंट अतहर इकबाल प्रेजेंट महा अदील प्रेजेंट मलाइका ताहिर प्रेजेंट सना खालिद एब्सेंट अमसा जफर गुलजार एब्सेंट सफा नूर प्रेजेंट मुआज अरशद अमसा प्रेजेंट है अमसा प्रेजेंट मुआज भी प्रेजेंट है हिना खालिद प्रेजेंट आमना ताहिर प्रेजेंट सिमा भट्ट प्रेजेंट सना हबीब प्रेजेंट शवाल नईम प्रेजेंट मुशाहिद रहीम प्रेजेंट अमीर हमजा प्रेजेंट अबीहा जैनब एक ही लेक्चर में आई है अब तक एब्सेंट कोई ऐसा बच्चा जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो समिया शाहिद हैं मलीहा मरियम मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अमान लियाकत अच्छा जी इनके अलावा कोई है समिया शाहिद मलीहा मरियम मोहम्मद उस्मान मोहम्मद लियाकत मलीहा मरियम आपको मेरी मेल्स आती हैं नहीं आती अच्छा मलीहा आपने मुझे मेल करनी है विद दिस इशू सो आई कैन ऐड यू
इसके अलावा और कोई जिसका कोई अटेंडेंस इशू हो या उसको मेल ना आती हो तो मुझे मेल करके बता दे। और आपने ये भी करनी है फिर। चले ठीक है, गुड। पहले कहाँ थी वैसे आप? ओके जी, कोई इश्यू हो तो यू कैन मेल मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस। और थर्सडे को होगा नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह अपना लेक्चर प्रिपेयर कर लें, साथ साथ 7 लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे इन योर क्विज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।